Hello everyone, I am the chartered engineer and technical expert on behalf of RS Beragi Engineering and Valuation Services. Also government reserve valuer under the Wealth Tax Act 1957 clause 34 AB and also in the Insolvency and Bankruptcy Board of India, that is called IBBI. Apart from this, I am also the founder and CEO of RS Beragi Engineering and Valuation Services and RS Beragi Films Productions. Also, civil engineer, writer, and some other activities also I love to do. I'm happy here today. Whatever we are going to discuss, that is Rajasthan Textile and Apparel Policy 2025. Not whatever, this is the specific policy which we are going to discuss, and it is published by Department of Industry and Commerce, Government of Rajasthan under the Rising Rajasthan Summit. Right. So this will be the our topic today and session 1. In around 7 to 8 sessions, I will be completing this entire policy. And for this, I am having the technical experts, the engineer, Mr. Badal Singh, mechanical department, and the engineer, Mr. Shamlal Chaudhary, department, textile department. And I am the engineer from the civil department as well as the environmental activities plant, some environmental plants, you can say STB plant, some water purification plant. So this is specialization or the area of interest I do carry. Okay. सो बेसिकली आज का जो हमारा मकसद है वो राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 को के सेशन को स्टार्ट करना है। साथ ही इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हैं या जो इसका इम्पोर्टेंस है वो मैं राजस्थान के वेरियस टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट को देना चाहता हूं, क्योंकि अभी हाल ही में 31 मार्च 2025 को हॉर्नेबल चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा सर and Colonel Rajyavardhan Rathod sir, he is the Minister Industries and Commerce, Rajasthan, has launched this policy, Rajasthan Textile and Apparel Policy 2025. So for this I am having the industrial technical experts, Mr. Amit Kumar Jain sir. It is happening under the consultation of him also, and also the textile engineer Mr. Shamlal Chaudhary, and also the mechanical engineer Mr. Badal Singh, and the computer science engineer Mr. Ajay Kumar Gehlot. Information technology he belongs to, and in computer science Chandrabhaga Vaishnav. Right. So basically RS Beragi Engineering and Valuation Services is the combination of all these experts, and I am the conveyor. Okay, so I consolidate all things and convey to you people. So by not wasting time, let us start today's session. Before going to start, I would also love to tell some important concepts. I am not belongs to any specific party. मैं किसी particular party से belong नहीं करता, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या अदर समथिंग. ओके, पर मैं आपको जनरल चीज बताना चाहूंगा जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा राजस्थान विधानसभा के अंदर ऑपोजिशन जो है रूलिंग पार्टी के ऊपर टूट के पड़ रही है कि आपने राइजिंग राजस्थान ओपन किया है, आपने राइजिंग राजस्थान स्टार्ट किया, लेकिन इसमें हो कुछ नहीं रहा है ना, इतने सारे एमओईज हो गए, उनको धरातल पे कुछ भी नहीं लाया गया है, ऐसा एलिगेशंस वो लगा रहे. तो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने सारे जो है प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, प्लस हैज ए इन्वेस्टर मैंने RS बैरागी फिल्म्स प्रोडक्शंस को भी स्टार्ट किया है, जो फिल्म सिटी सवाईपुर में आप जाके आराम से देख सकते हैं. आप गूगल पे सर्च करके भी जहाँ मैंने जियो टैगिंग कर रखी वहां पे भी आप देख सकते हैं. और हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है RS बैरागी फिल्म्स प्रोडक्शंस, वहाँ पे जो हम स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं रूट लेवल पर स्टार्टिंग में, उसको आप चेक कर सकते हैं. ओके, तो ये कहना बिल्कुल बेतुकी है कि राइजिंग राजस्थान में कुछ नहीं हुआ, रूलिंग पार्टी कुछ नहीं कर रही, ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, है ना, मैंने देखा है. और अब तक की जितनी गवर्नमेंट्स है, मैं तो ये मानूंगा कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है ये जिस तरह से हम लोगों से फॉलोअप ले रही, जिस तरह से
जो नए नए इन्वेस्टर्स को, जो ओल्ड इन्वेस्टर्स को, जो एक्सटेंशन करने वाले इन्वेस्टर, उनको जिस तरीके से एंटरटेन कर रही है, मुझे नहीं लगता कि पिछली कई पीढ़ियों में किसी गवर्नमेंट ने इस तरीके से एंटरटेन किया होगा, है ना। तो रूट लेवल पे भी काम स्टार्ट हो गया है। आप पार्टी से थोड़ा सा हट के राजस्थान के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए आप विधानसभा में, मैं ऑपोजिशन पार्टी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें और इस प्रोग्राम को एटलीस्ट सक्सेसफुल बनाएं, जिससे कि लैक्स ऑफ करोड़ के जो एमओयूज हैं वो धरातल पर आ जाएं। अगर वो नहीं आ रहे हैं, किसी कारणवश कोई समस्या आ रही है, तो उन समस्याओं को आप एज ए ऑपोजिशन लीडर आप रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट उठाइए, जिससे क्या कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और अपना राजस्थान भी ऑल इंडिया में बहुत बेहतर तरीके से डेवलप हो पाएगा। इस तरीके से एक दूसरे को तोड़ने से हम जो है वैसे ही बहुत पीछे हैं, है ना। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो बाहर अच्छे से डेवलप कर रही है, यहाँ नहीं कर रही है। यहाँ के काफी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ नहीं कर रहे। तो वो उस प्रथा को तोड़िए और इस जगह को भी आप डेवलप कीजिए। बहुत ही जल्दी जो है फिल्म सिटी सवाईपुर में भी एयरपोर्ट्स, है ना, फिल्म मेकिंग, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, और इवन मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है मोर देन 1 लाख जॉब्स जो है वहाँ न्यू क्रिएट हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट वहाँ क्रिएट हो सकता है। सो बेसिकली नॉट गोइंग ओनली पर्टिकुलर टू दैट, लेट अस कम टू द राजस्थान टेक्सटाइल अपीयरल पॉलिसी 2025, जिसमें मैं बता देता हूँ कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह सर एंड ब्रजलाल शर्मा सर का कितना डायरेक्ट मतलब इंटरफेयर इसमें हो रहा है, जिससे कि ये बेहतर तरीके से बन सके। मेरे पास मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास में जब से इन्वेस्टमेंट सबमिट हुई है तब से लेकर आज तक काफी कॉल्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है। अब आप यकीन मानिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हमको इस कारण के लिए क्या कॉल करेगा कि भाई आप काम शुरू करिए, है ना। तो ये तो मतलब नया ही है एक तरीके से। वो तो या तो कॉल करेंगे या तो हम किसी टैक्स को के अंदर डिस्प्यूट आ गया तो कॉल करेंगे, कोई डेविएशन होगा तो कॉल करेंगे, है ना। लेकिन वो कॉल कर रहे हैं कि आप इंडस्ट्री स्टार्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि मैं इस गवर्नमेंट में इस प्रोग्राम को स्पेसिफिकली सपोर्ट करना चाहूँगा। और ये जिस तरीके से नवाचार लेकर आए, जिस तरीके से इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के जो माइंडसेट्स लेके आए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान गवर्नमेंट के लिए। तो ये जो राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपीयरल पॉलिसी 2025 है, इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। जो बिलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी है, वहाँ के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ऑलरेडी जिनके प्लान चल रहे हैं, कोई एक्सटेंड कर रहे हैं, कोई नए बना रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जो है स्कीम इसके अंदर है और क्या विजन है उनका गवर्नमेंट का, है ना, उन चीज को हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर वंदना शर्मा ने डायरेक्टली बोला कि राजस्थान हैज ए रिच लेगेसी ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल क्राफ्ट्समैनशिप which our artisans and industries shaping global trends. The Rajasthan Textile and Apparel Policy 2025 is a transformative step towards strengthening the sector by integrating traditional with modern tech. मीन्स जो ट्रेडिशनल एक्टिविटी चल रही है या जो ट्रेडिशनल मशीनरी हम काम में ले रहे हैं, उनको मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, उनको मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, इसमें मेरा इनपुट देना चाहता हूँ। विद द एम टू पोजिशन राजस्थान हैज ए लीडिंग टेक्सटाइल manufacturing and export hub, leveraging our skilled workforce, strong infrastructure and investor friendly environment। मतलब वो चाह रहे हैं कि ये जो environment create हो, investor friendly हो, जिससे क्या कि बहुत सस्टेनेबल तरीके से हम लोग ग्रो कर पाए, है ना। और ये जो पॉलिसी, दिस पॉलिसी प्रमोट्स सस्टेनेबिलिटी, innovation and employment generation, ensuring that our textile and apparel sector remains globally competitive। मीन्स ये एंश्योर भी कर रहा है, प्लस ये सस्टेनेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं कि स्थायी टिकाऊपन जिसमें रहे, इनोवेशन की भी बात कर रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड होके आए जिससे बेटर प्रोडक्शन हो पावे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राजस्थान स्टेट, ये भी इससे क्रिएट हो सके, है ना, और उसको एंश्योर भी कर सके। तो ये विजन है। स्पेशल एम्फेसिस हैज बीन प्लेस्ड इन द पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट। ये जो टॉप पॉइंट्स बोल रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट, इस तरह की जो चीजें हैं जनरली फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट लेके आई हैं, तो हमें इसका बेनिफिट उठाना है। एमएसएमई जो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं भी एक एमएसएमई को लेके चल रहा हूँ, आरएस पैरागी इंजीनियरिंग एंड वैल्यूएशन सर्विसेज,
है ना? तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो बहुत ही स्मूथ तरीके से मुझे अप्रूवल लाइसेंसेस मिले, है ना? जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपर्टीज़ है, उसमें मैं काम कर पाया और आज मैं 35 प्लस टेक्निकल, नॉन टेक्निकल इंजीनियर्स, कॉमर्स ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ थ्रू आउट द राजस्थान। ऑल्सो जो चीफ मिनिस्टर सर वो कह रहे हैं कि आई इनवाइट बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रोग्रेसिव पॉलिसी एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ राजस्थान टेक्सटाइल सेक्टर। तो इस तरह का जो चीजें लेके चला, टुगेदर वी विल वीव अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर एंश्योरिंग दैट राजस्थान कंटिन्यू टू बी ए लीडर इन इंडिया टेक्सटाइल एंड अपीयरल सेक्टर, राइट? सो ये मतलब उनका विजन है, सिर्फ लिखी लिखाई बातें नहीं हैं, काफी प्रोग्राम्स भी टाइमली हो रहे हैं जिनमें इन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। और कर्नल राज्यवर्धन सर भी इसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, जो मिनिस्टर है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ऑफ राजस्थान के। उनका कहना है कि द राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपीयरल पॉलिसी 2025 इज ए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव डिजाइन टू स्ट्रेंथन एंड मॉडर्नाइज द टेक्सटाइल सेक्टर। मतलब टेक्सटाइल सेक्टर को मॉडर्न बनाने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए हम लोग ये पॉलिसी लेके आए, ensuring its continued growth and global competitiveness under the leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi sir and Honorable Chief Minister Sri Bhajan Lal Sharma. Rajasthan is renowned for its exquisite textile, and through its policy, we aim to enhance our production capabilities, foster innovation and attractive investment. तो इस तरह के जो वर्ड हैं, इन वर्ड्स को जब आप जो ना इसके हित में काम करेंगे या इसको आगे अपग्रेड करने के लिए काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये उठ के आएंगे और ये इम्प्लीमेंट भी होंगे। विथ राजस्थान's robust connectivity, skilled workforce and proactive governance, we are confident that this policy will drive growth and generate employments. जाहिर सी बात है, अगर हम नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी को रिमूव करके, तो उसमें एफिशिएंसी आएगी, प्रोडक्शन आएगा, प्लस नए इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, नए इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा होगा, है ना? टुगेदर वी आर वर्किंग टू स्टेबलाइज राजस्थान हैज ए ग्लोबल लीडर इन टेक्सटाइल एंड अपीयरल सेक्टर। तो ये उनके दो विजन है। इसी विजन के साथ में मैं राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपीयरल पॉलिसी 2025 के प्रिम्बल को आपके सामने, इंट्रोडक्शन को आपके सामने आज डिस्कस करना चाहूँगा। दिस इज आवर फर्स्ट चैनल and in that first channel, I'm welcoming you on my platform RSB EVS underscore affairs, which is running over here, and you can be with me on that. Whatever your query will be, you can discuss over there. Okay, जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उन पे डिस्कस कर सकते हो। हमारे पास में बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट है ना, और जो समय समय पर हम लोगों को मार्गदर्शित कर रहे हैं, है ना। हमारे पास टीम ऑफ इंजीनियर्स हैं, है ना। और मैं चार्टर्ड इंजीनियर, मेरी क्या आवश्यकता पड़ती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। RSB EVS इंडस कॉर्प अफेयर्स, इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट दोनों को मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा है इन आने वाले 10 to 12 मतलब बीते 10 से 12 सालों में कि जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं होती, उसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज शुरू ही नहीं हो पाती। जब शुरू ही नहीं होगी तो अल्टीमेटली ग्रोथ का पॉसिबिलिटी होगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी इतना होगा नहीं। तो जो मेरा अनुभव है 12 प्लस ईयर्स का, उस एक्सपीरियंस को आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इन वेरियस सेक्टर्स, लाइक इन रियल एस्टेट सेक्टर्स, इन valuation of immovable sectors, in the plantation and industry development sectors, right? And also in some other filmmaking sectors, writing sectors. So these sectors on through which I have traveled, I will be sharing the experience which I achieved from that, right? And apart from this, as a chartered engineer, how I can help all you textile industrialist, some other industrialist, वो मैं आपको बताऊंगा। As a chartered engineer, in consultation with various team of engineers, technical experts and the industrial expert Mr. Amit Kumar Jain sir and some other engineers, मैं जनरली हम लोग जो है behalf of RS Bairagi Engineering Valuation Services
आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो वेरियस टेक्सटाइल एंड अदर देन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपने स्टेबलाइज कर रखी, उनके लिए हम लोग चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जिला उद्योग केंद्र, इन डीआईसी ऑफिसेस एंड सम अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेशन में हम लोग उस प्लांट का पूरा ओवरव्यू देते हैं, पूरी कंप्लीट रिपोर्ट बनाते हैं, वो किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, क्या मशीनरी उनमें लगी, क्या मशीनरी लगी जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है भी नहीं, है ना, उनके सीरियल नंबर से हम उनको क्रॉस चेकिंग करते हैं। ये हमारा इंस्टॉलेशन, ये अपना चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा हम इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट्स भी देते हैं कि मशीनरी एक बार इंस्टॉल होगी तो हमारा इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट्स लगता है। इसके अलावा ब्लूप्रिंट भी हम लोग तैयार करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। प्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी सर्टिफिकेट्स भी हम रिकॉर्ड्स को देख के हमारे एक्सपर्ट की टीम के साथ डिस्कस करके हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। प्लस इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट्स हो ही गया। ईपीसीसी लाइसेंस, अगर आप कहीं से जो है मॉडर्न अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, है ना, इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से, उसके लिए ईपीसीसी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। उससे पहले जो स्कोप होता है उसकी रिपोर्ट में हम लोग आपको देते हैं। प्लस जो वाटर प्योरिफिकेशन, जो एयर प्योरिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो एनवायरनमेंट को साथ में रखते हुए एक टिकाऊ डेवलपमेंट बने, उसके लिए भी बहुत सारे सब्सिडाइज प्लांट बन रहे हैं। जैसे एसटीपी प्लांट हो गया, है ना, जीरो जो है पॉल्यूशन एमिशन वाले एयर हो गई, है ना, वाटर हो गया, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं उन प्लांट्स के थ्रू हम लोग जो प्लांट्स के थ्रू होती हैं, और गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडी का भी उनके पास में प्रोविजन है। प्लस वो आपको अदर वे में भी इंसेंटिव के तौर में भी, है ना, रिम्बर्समेंट के तौर में भी आपको सपोर्ट कर रही है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग करते हैं। तो मैं आज के इस फर्स्ट सेशन में आपको प्रेम्बल के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। जो प्रेम्बल है उनको मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूँ, प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डायरेक्टली आपके अटैच होंगे उन चीज़ों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रेम्बल में कहा गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर represents a vital component of our economy, fostering growth with its rich heritage and significance in national and global trade. The textile and apparel sector employ millions, supports livelihoods, and contributes substantially to our GSDP. Recognizing the evolving demands of market and the necessity for a competitive edge, the government of Rajasthan hereby present a comprehensive Rajasthan Textile and Apparel Policy 2025 designed to advance our position in both domestic and international areas. मतलब जो ये पॉलिसी डिजाइन की गई है, ये डोमेस्टिक के लिए भी की गई है, इंटरनेशनल जो है एरियाज के अंदर भी की गई है। This policy focuses on the holistic development of the textile and apparel industry by fostering collaboration across various segments, right? So इनमें जो प्रायोरिटी दी गई हैं उनमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो द राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 का जो प्रिम्बल है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रिम्बल में जो मोस्ट प्रायोरिटी में पॉइंट रखे गए उन पॉइंट्स को मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच दे हैव टेकन इन दी प्रायोरिटी। ओके, सो दिस इज द ऑथेंटिक पॉलिसी, यू कैन कीप चेकिंग। आपको हमेशा हर चीज को चेक करना है ना। तो इसमें बोला है कि प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल फाइबर्स, मीन्स जो टेक्सटाइल पॉलिसी है उसमें फोकस किया गया है प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल फाइबर्स के ऊपर। Encouraging sustainable development, enhancing the use of environmentally friendly material and boosting the overall competitiveness of the textile industry. क्या कहा गया है कि जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं इसमें, तो मैं नेचुरल फाइबर्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाहूँगा, जिससे क्या है पॉल्यूशन जो है हमारा कंट्रोल होवे, जो भी हम लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो एक सस्टेनेबली डेवलप होवे, है ना, और इसके अंदर हम जो है कॉम्पिटिटिव में आ जाए। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ मैन मेड फाइबर्स, MMF। इनके लिए भी गवर्नमेंट ने फोकस किया कि एक्नॉलेजिंग द ग्रोविंग डिमांड फॉर सिंथेटिक अल्टरनेटिव्स, वी सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ मैन मेड फाइबर्स, प्रमोटिंग देयर यूज व्हाइल एंश्योरिंग सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज एंड रिड्यूस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। ओके, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज है वो सस्टेनेबल हो,
ठीक है, और जो टेक्सटाइल जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स छूट जाते हैं, जो पॉल्यूट करते हैं, उनको हम लोग क्या रिड्यूस करें। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल्स। इसमें स्टेबलाइजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज एम टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड क्वालिटी इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी हम लोग प्रोड्यूस करें, है ना। एड्रेसिंग द एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम योर यार्न स्पिनिंग टू फैब्रिक प्रोडक्शंस। जो यार्न स्पिनिंग है वहां से लेके जो फैब्रिक प्रोडक्शंस है उसमें एक वैल्यू चेन बने, है ना, और वो सस्टेनेबल भी हो, वो एफिशिएंट भी हो। इस एम के साथ में प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल्स को जो है इंडस्ट्रियल शुरू करें। प्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ये क्या चीज होती है? रिकॉग्नाइजिंग दी owning market for technical textiles, this policy promotes research and development initiatives to create high performance fabrics suitable for specialized applications. मीन्स जो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल होते हैं, उसमें जो हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक्स होते हैं उनको हम लोग क्रिएट करें। इसके थ्रू जो है प्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल जो है हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज, वेरियस इंडस्ट्री में वो शुरू हो गए। उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी जो है आवे, इस बात का ध्यान भी इस पॉलिसी में रखा गया है। हैंडलूम एंड टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट्स, हैंड होल्डिंग फॉर द डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ द हैंडलूम एंड टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। जो टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए भी इस पॉलिसी में बात की गई है। वूल प्रोसेसिंग, implementing comprehensive strategies for the whole supply chain, encompassing scoring, combing, spinning, weaving, milling processes. We aim to boost the domestic and whole industry while elevating our standards through technological advancement. जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं उनके थ्रू हम लोग क्या करें कि एलिवेट करें किसको? होल इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक होल इंडस्ट्री को। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ अपैरेल, सपोर्टिंग द गारमेंट इंडस्ट्री थ्रू द स्टेबलाइजमेंट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ रेडी टू वियर अपैरेल, है ना, मेडअप्स एंड वेरेबल्स। तो जो मेडअप्स है, वेरेबल्स हैं, रेडी टू वियर अपैरेल्स हैं, उनके लिए भी जो है उनके प्रोडक्शन के लिए भी इस पॉलिसी में बात की गई है। प्रोसेसिंग ऑफ लेदर एंड लेदर, promoting sustainable practices in leather processing, including training and finishing operations that minimize environmental impact while enhancing the quality of leather and leatherette products. जो लेदर हैं और जो लेदर के प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं उनमें भी जो है एनवायरमेंट कम इम्पैक्ट हो और एफिशिएंट तरीके से उनका भी प्रोडक्शन हो, उनकी प्रोसेसिंग हो, तो उसके लिए भी पॉलिसी में बात की गई। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर एंड लेदरेट प्रोडक्ट्स, encouraging innovation in the design and manufacture of high quality leather and leatherette goods, positioning local manufacturers as leaders in craftsmanship and style। मतलब जो राजस्थान के लोकली एरिया के अंदर में जो लेदर के वेरियस प्रोडक्ट्स बनाते हैं या जिनके अंदर अच्छे अच्छे डिजाइन्स हैं या जो डिजाइन को इनोवेट कर सकते हैं, उनको एक ब्रांड के रूप में क्रिएट कर सके, उस पर भी इस पॉलिसी में बात की गई है। पोजिशनिंग लोकल मैन्युफैक्चरर्स, है ना, एज लीडर्स इन क्राफ्टमैनशिप, तो उनको एज ए लीडर मान के उनकी जो स्किल्स है उनको टेक्निकली ड्राफ्ट करके उनके ऊपर काम शुरू किया जाए। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एक्सेसरीज, fostering a culture of creativity and excellence in producing accessories used in the textile, apparel and leather sector, ensuring they complement our core offerings and meet consumer demands। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सेसरीज हैं वो कंज्यूमर्स की जो डिमांड है उनको प्रॉपर तरीके से फिल कर सके, ऐसी चीज के ऊपर भी हम लोग इसमें काम करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवियर, advancing the footwear industry through the integration of diverse materials, means जो diverse materials को यूज करते हुए हम लोग फुटवियर्स की जो इंडस्ट्री है उसको हम एनहांस करें, एडवांस करें, ओके, इंक्लूडिंग जैसे उसमें रबर हो गया, प्लास्टिक, फैब्रिक,
textile, cotton, wool, polyester, nylon, synthetics, and enhancing the comfort, durability, and aesthetics in footwear design. कंफर्ट भी चाहिए, मिले 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 लोगों को, ड्यूरेबिलिटी भी हो उसकी, और एस्थेटिक्स भी वो हो. ओके. This Rajasthan Textile and Apparel Policy 2025 aims to create a robust framework that aligns with global best practices while addressing local needs. Okay, मतलब local needs को address करते हुए बनाना अपन को. By fostering skill development, जिनमें skill नहीं है उनको develop करना, train करना, sustainability है जो टिकाऊपन उसमें रहे, कोलेब्रेशन अक्रॉस दी सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में भी कोलेब्रेशन रहे जिससे एफिशिएंसी और प्रोडक्शन को एक सुचारू गति दे सके. दिस गवर्नमेंट विल कैटलाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, create employment opportunity, and ensure our place as a key global player in the textile and apparel industry. जो वर्तमान गवर्नमेंट है भजनलाल शर्मा सर की, है ना, ये चाह रही हैं कि मैं जो है इकोनॉमी को ग्रो करूं. अब इकोनॉमी के ग्रो के लिए हमको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, है ना, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी हो, इंडस्ट्रीज भी हो, तभी हम ओवरऑल उसको ग्रो कर पाए. ये इनका एम है. और एंश्योर ऑफ प्लेसेस हैज की ग्लोबल प्लेयर इन द टेक्सटाइल एंड अपीरियल मार्केट, है ना. जो की ग्लोबल प्लेयर मीन्स हम एडवांस तरीके से जो है पूरे ऑल इंडिया में या पूरे वर्ल्ड के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में परफेक्ट बने. टुगेदर साथ साथ वी विल वेव ए फ्यूचर ऑफ लास्टिंग इम्पैक्ट एंड सक्सेस फॉर द टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर इन राजस्थान. ओके, तो जो बात उन्होंने की है कि प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल फाइबर से हो, प्रोडक्शन ऑफ मैन मेड फाइबर से हो, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्सटाइल से हो, प्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल से हो, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट से हो, वूल प्रोसेसिंग से हो, प्रोडक्शन ऑफ अपैरल से हो, प्रोसेसिंग ऑफ लेदर एंड लेदरट से हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स से हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सेसरी जो जो इनमें काम आती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवियर हो, इन सब के बारे में इस राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 में को डिज़ाइन किया गया है, के ऊपर बात की गई है, ताकि हम उसको वर्तमान धरातल पर ला सकें और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सस्टेनेबली एनहांस कर सके नई टेक्नोलॉजी के साथ में. So आज के लिए इतना ही. Today is enough in this session. I would be coming back in next other sessions on which we will be discussing the introduction part of this Rajasthan Textile and Apparel Policy 2025 on that textile production in India. What was the historical background? उनकी हिस्ट्री क्या थी? टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया करंट सिनारियो क्या है ना. 2.3% टू इंडिया जीडीपी में किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा, 13% टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर, 12% टू इंडियाज एक्सपोर्ट के अंदर, टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन राजस्थान, एडवांस राजस्थान कनेक्टिविटी, स्किल्ड मैन पावर, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स. तो ये सारी चीज़ें जो है वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट इंट्रोडक्शन सेक्शन. सो फॉर टुडे इट इज़ फाइन. आज के लिए इतना ही. मुझे इजाज़त दीजिए. हैव अ टेक केयर. हैव अ ग्रेट डे.